So welcome to the students. This is the lecture number 2 of this turbulent flow through the pipe. जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमने कहाँ तक उसको डिस्कस किया था। तो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि एज पर द एनालिसिस ऑफ रेनॉल्ड, अगर जो रेनॉल्ड ने एनालिसिस दिया था, एज पर द एनालिसिस ऑफ रेनॉल्ड, द टोटल shear stress in turbulent flow, this is equal to, क्या दिया था इसने, जहां तक हमने पढ़ लिया था, टाउ इज इक्वल टू टाउ टी, टाउ इज इक्वल टू टाउ एल प्लस टाउ टी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका था टोटल shear stress in the turbulent flow. The tau L, this is the laminar component of the shear stress, right? Tau L क्या है? ये आपका laminar component है shear stress का, and this component we got when there is the friction between the fluid particles in the layer. You understand? तो ये हमें component कब मिलेगा which accounts for the friction between the fluid particles in the layer. This component we will get when there is a friction between the fluid particles. And the second component, this shear stress in the turbulent tau T component, this is the turbulent component of the shear stress, and that accounts for the friction between the fluid particles and the fluid body. जो फ्लूइड पार्टिकल्स और फ्लूइड बॉडी के बीच में जो आपका फ्रिक्शन डेवलप होगा, उसके कारण हमें ये मिलेगा टर्बुलेंट कंपोनेंट. सो यू कैन से दैट द टोटल shear stress in turbulent flow, this is equal to tau L plus tau T. You understand? So tau L, जो आपका tau L है, this you know, इसका मतलब tau is equal to mu du upon dy. This is the laminar component of the shear stress, mu du upon dy. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, and plus tau t को उसने लिखा था tau t, this is equal to u dash into v dash, right? Tau t, this is u dash v dash. This he got from the various experiments which he has done, and उसका एक एम्पिरिकल इसने फार्मूला लिखा था कि टाउ टी जो आपकी टर्बुलेंट shear stress है, दिस इज इक्वल टू टाउ इनटू यू डैश इनटू बी डैश. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका आ गया जहां तक हमने पढ़ा था. दिस इज द this total shear stress that is given by the Reynolds, and this stress is also called the Reynolds stress, tau u dash v dash, because this stress, this is also called the Reynolds stress, right? So this is the statement hypothesis which is given by the Reynolds. Now उसके बाद आपके दूसरे साइंटिस्ट आए, बोसिनेक. उसके बाद आपके जो साइंटिस्ट थे बोसिनेक, तो उन्होंने आपको क्या दिया था? सो बोसिनेक कंट्रीब्यूशन क्या थी? सो इसके बाद आपके आगे बोसी, कंट्रीब्यूशन. तो आपने रेनॉल्ड ने जहां तक कंट्रीब्यूशन दिया था कि टोटल shear stress, this is equal to laminar component of the shear stress plus the turbulent component of the shear stress. Laminar component of the shear stress, that is written by this, and the turbulent component of the shear stress, this is equal to tau u dash v dash. What is u dash? U dash,
this is the fluctuation velocity of the particle in x direction, and b dash, this is the fluctuation velocity of the particles in y direction. You understand? So u dash, v dash, you can say these are the fluctuation velocities of the particles in x direction and y direction. So जहां तक तो चीजें क्लियर है. नाउ बोसिनेक कंट्रीब्यूशन, तो बोसिनेक ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था, उस कंट्रीब्यूशन में ही सेड दैट टोटल shear स्ट्रेस, जो टोटल shear स्ट्रेस होगी इन टर्बुलेंट फ्लो, टोटल shear स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज इक्वल टू, सेम है, इक्वेशन तो सेम रहेगी. एक आपका कंपोनेंट कौन सा होगा? लैमिनार कंपोनेंट, टाउ एल, दिस इज द लैमिनार कंपोनेंट, एंड टाउ टी, दिस इज द टर्बुलेंट कंपोनेंट, राइट. तो जैसे आपको पता है टाउ इज इक्वल टू लैमिनार कंपोनेंट क्या होगा? म्यू डी यू अपॉन डी वाई. दिस इज द शियर स्ट्रेस फॉर द लैमिनार कंपोनेंट. और उसमें उसने व्हाट ही हैज डन द न्यू थिंग हियर, उसने क्या किया कि टाउ टी को लिखा टाउ डी यू अपॉन डी वाई. दिस इज नीटा. ये क्या था? ये आपका नीटा, राइट. यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो नीटा है, इसकी वैल्यू इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, सो यू कैन से दैट इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, अगर लैमिनार फ्लो होगा, इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, eta this is equal to 0. But in case of turbulent flow, in case of turbulent flow, in case of turbulent flow, turbulent फ्लो के केस में ईटा की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू यू डैश इंटू वी डैश. यू अंडरस्टैंड? ईटा दिस इज इक्वल टू यू डैश इंटू वी डैश. तो यू डैश भी क्या आ गया? फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, द फ्लक्चुएशन ऑफ द पार्टिकल्स in the x direction and fluctuation of the particles, fluid particles in the y direction. You understand? तो J भी आपका आ गया U डैश इंटू B डैश. और इसमें एक नोट में चीज लिख लेते हैं. राइट. सो ईटा क्या है? व्हाट इज ईटा? ईटा आप लिख लीजिए. ईटा है काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी. काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी, दिस इज द फ्लो प्रॉपर्टी, राइट. तो ये क्या है? ये आपकी फ्लो प्रॉपर्टी, काइनेमेटिक ईटा. सो ईटा कैन बी कैलकुलेटेड. तो ये जो आपकी एडी विस्कोसिटी है, दैट ईटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग. तो ईटा को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ईटा कैन बी
कैलकुलेटेड, अगर ईटा की वैल्यू अपने कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u डैश b डैश। ईटा की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, u डैश और b डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज योर u डैश? u डैश, दिस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन x डायरेक्शन, and b dash, this is the fluctuation of the fluid particles in the y direction. You understand this? तो जहां से आप देखिए जो बोसिनिक ने कंट्रीब्यूशंस दिया था उसमें भी हमें अगर टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस वी हैव टू कैलकुलेट, वी नीड द वैल्यू ऑफ u डैश एंड b डैश, वेयर एज जो प्रीवियस आपने रेनॉल्ड का, as per the analysis of the Reynolds, जो आपका टर्बुलेंट कंपोनेंट था that is equal to the rho u dash v dash. So in both the cases you have seen that if you have to calculate the value of turbulent shear stress, we must calculate the value of u dash and b dash. तो हमें u dash और b dash की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझाइए आपको बात। जो रेनॉल्ड ने टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस दिया था दैट इज इक्वल टू रो u डैश इनटू b डैश। लैमिनार कंपोनेंट in both the cases are same, there is no difference in that. What in turbulent component, as per the analysis of the Reynolds, जो रेनॉल्ड का एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग जो आपका टर्बुलेंट कंपोनेंट था दिस इज इक्वल टू रो u डैश इनटू b डैश, वेयर एज पर द बोसिनिक जो आपका टर्बुलेंट कंपोनेंट था दिस इज इक्वल टू ईटा इंटू डी यू पॉन डी वाई, राइट। बट द प्रॉब्लम इज ईटा कैन बी कैलकुलेटेड, ईटा को भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू और इफ वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ u डैश एंड b डैश, मीन्स फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। तो इसमें और इसमें ऑलमोस्ट द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। व्हाट द प्रॉब्लम इज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u डैश एंड b डैश। u डैश और b डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। नाउ आफ्टर दिस देन Prandtl comes into the picture in 1925. He has given the hypothesis and according to that उसने क्या कहा था कि जो आपका टर्बुलेंट कंपोनेंट है that can be calculated by the measurable quantity। इसको हम एक measurable quantity से कैलकुलेट कर सकते हैं, that can be calculated by the measurable quantity, because this quantity u dash and b dash, this quantity is not the measurable quantity, this is very difficult to measure this quantity. So as per the Prandtl, इसके बाद क्या हुआ था, Prandtl साहब आ गए तो उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया, ये हो गया था बोसिनिक का। इन दोनों के केसेस में आपने देखा एज पर द रेनॉल्ड एंड बोसिनिक, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टर्बुलेंट shear stress in the turbulent flow, we must need to calculate the value of u dash and b dash, which is very difficult to measure. तो थर्ड आगे आपके Prandtl साहब, so we can write this is the Prandtl contribution,
parental contribution. Now, what is the contribution of the parental, right? So, as I told you, as per the analysis of the Reynolds about the turbulent shear stress and the Bosenick, we have seen that if we want to calculate the turbulent component of the shear stress, we must we must know the values of U dash and V dash. U dash, that is the fluctuation of the component in X, fluctuation of the fluid particles in X direction and fluctuation of the fluid particle in Y direction. What it is very difficult to measure, right? So then Prandtl has given the hypothesis, and he said that the turbulent component of the shear stress can be analyzed with the help of the measurable quantity, right? तो उन्होंने कहा था टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ shear stress, turbulent component of the shear stress can be expressed in terms of measurable quantity, can be expressed in terms of the measurable quantity. So as we know, उसने इक्वेशन दिया as we know, as given by the Prandtl टाउ किसके बराबर था? टाउ इज इक्वल टू tau L plus tau T. This is the total shear stress in turbulent flow. This is equal to the total shear stress in the laminar component plus total shear stress in the turbulent component. जहां तक तो ये ठीक है. So tau L तो आपको पता है, this is mu into du upon dy. अब टाउ को इसने जो मेजरेबल क्वांटिटी लिया था, वो क्या लिया था? मेजरेबल क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू एल. टाउ टी किया था टाउ टी, दिस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी यू अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, राइट? सो उसने इस तरीके से लिखा था, दिस इज द टर्बुलेंट कंपोनेंट, this is the turbulent component of the shear stress, right? So this is the turbulent component of the shear stress. So you have time average velocity, right? Up now, what is L? जहां पे कर लीजिए. So L क्या है? L, this is the length. ये क्या है? This is the Prandtl length, and tau t he has written like this. अब देखिए Prandtl लेंथ क्या होगी. सपोज
right? So this distance is called the Prandtl length, right? The distance between the fluid particles. Suppose this particle is in layer first. ध्यान से देखिए, ये आपका लेयर फर्स्ट में है. द फ्लो इज टर्बुलेंट. तो लेयर फर्स्ट में इसकी जो टाइम एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज यू बार. इट जंप्स टू द सेकंड लेयर और इसकी टोटल वेलोसिटी होगी यू बार प्लस यू डैश, वेयर यू डैश इज द fluctuating component in the x direction. Now, what is L? L is the distance between the two fluid particles not in the x direction, means in the direction of the flow, that is in the normal direction, that is in the y direction. So that distance is called that distance so Prandtl length r, इसको आप इससे भी लिखें मिक्सिंग length, right? R mixing length L. You understand this? So what is Prandtl length or the mixing length? This you can say the distance between the fluid particles, the distance between the fluid particles in x direction or in the direction of flow not the distance between the fluid particles not in the x direction or in the direction of flow what along the y direction or normal to the direction of flow. You understand? So L जो आपका था, what we have taken here, this is called the mixing length or the Prandtl length. You understand? तो Prandtl length क्या था और mixing length क्या है? This is the distance between the fluid particles. ये जो दो कोई भी fluid particles हैं, this is the distance between them, not in x direction. We will not take the distance in the x direction or in the direction of flow, but we will take the distance in the y direction or to the normal to the direction of flow. You understand? तो ये हम डिस्टेंस जो है बाई डायरेक्शन में लेंगे, जहां इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. यू अंडरस्टैंड? नाउ जहां तक तो चीजें ठीक है. सो ये आप नोट कर लीजिए, टाउ इज इक्वल टू दिस. आप देखिए इसमें आगे लिखेंगे
सो फ्रेंडल्स ने एक और चीज कहा था, जहां पे देखिए फ्रेंडल्स, second thing he said that the fluid of the one layer that reach are lump of the fluids particles, lump of the fluid particles from one layer to reach the other layer, and they will mix with the other fluid particles in such a way that momentum of those fluid particles in x direction, that is equal to, that is same, you can say, that is momentum of the fluid particle in x direction, x is same. So एक स्टेटमेंट दिया था, lumps of fluid particles, lumps of fluid particles can reach from one layer to another layer, right? Can reach from one layer to another layer, and these are mixed, and these are mixed in such a way, जब फ्लूइड पार्टिकल्स एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर जाते हैं, जहां से एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर रीच करेंगे, तो ये फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से मिक्स करेंगे that such a way that momentum of the fluid particles, that momentum of particles or momentum of fluid particles in x direction is same, right? Momentum of the fluid particles in x direction is same, you understand? तो एक this statement is given, क्या स्टेटमेंट ये दिया था कि जब फ्लूइड पार्टिकल्स एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर जाते हैं और जब ये आपस में इस तरीके से मिक्स करेंगे कि जो मोमेंटम होगा फ्लूइड पार्टिकल्स का आफ्टर मिक्सिंग, वो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज सेम, राइट? दैट विल नॉट ऑल्टर, दैट विल सेम। एक तो इसने पहले ये कहा था। दूसरा, he has assumed that, what he has assumed, that Prandtl mixing length, or you can say U dash, what he has assumed that velocity fluctuation at the x direction, second he has assumed that velocity fluctuation in x direction, velocity fluctuation in x direction, क्या होती है velocity fluctuation x direction? That is u dash, right? U dash, this is the velocity fluctuation in x direction is related to the mixing length is related to the, अगर हम इसको मिक्सिंग लेंथ के साथ
रिलेट करें इज रिलेटेड टू द मिक्सिंग लेंथ एज क्या होगा, u डैश दिस इज इक्वल टू L इंटू DUR अपॉन DY, राइट। तो ये मिक्सिंग लेंथ के साथ कैसे रिलेट करेगी, u डैश, राइट, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज आल्सो द अजम्पशन। प्रेंडल ने अजम्पशन क्या दिया था कि जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन है इन x डायरेक्शन, इफ वी विल रिलेट विद द मिक्सिंग लेंथ, देखिए ये ऑल दीज आर द एम्पिरिकल फार्मूला आफ्टर डूइंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो प्रेंडल ने जो स्टेटमेंट दिया था, हाइपोथेसिस दिया था, उसमें व्हाट एवर ही हैज डिस्कस्ड हियर, व्हाट ही हैज टोल्ड इन दैट कि वेलोसिटी फ्लक्चुएशन जो x डायरेक्शन में है, अगर हम उसको मिक्सिंग लेंथ के साथ रिलेट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन, u डैश इज इक्वल टू L u डैश du डैश इनटू y डैश, राइट। एंड इसी तरीके से वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन बाई डायरेक्शन, जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन बाई डायरेक्शन इज रिलेटेड विद द मिक्सिंग लेंथ विद द सेम मैग्नीट्यूड, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा। तो सो यू कैन से दैट, इसको मिटा देते हैं, ये क्या था, ये मिक्सिंग लेंथ का डेफिनेशन था, यू मस्ट राइट डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स नॉट इन द x डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, व्हाट अलोंग द y डायरेक्शन आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स है, मिक्सिंग लेंथ का क्या डेफिनेशन था, मिक्सिंग लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स इन y डायरेक्शन, you can say that in y direction are normal direction to the direction of flow, not in the x direction, or you can say in the flow direction. तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लूइड पार्टिकल्स होगा, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग लेंथ कहेंगे, राइट। तो इसी तरीके से सो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन बाई डायरेक्शन, जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन थी, वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन वाई, वेलोसिटी फ्लक्चुएशन क्या थी बाई डायरेक्शन में, बी डैश, एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द मिक्सिंग लेंथ एज L, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, du बार अपॉन dy, राइट। You understand this? अच्छा, so according to the equation, जो रेनॉल्ड ने इक्वेशन दिया था, tau is equal to total shear stress, this is equal to tau L plus tau T, you understand, tau L plus tau T, और this is the tau L क्या था, mu du upon dy plus rho u dash into v dash, this is the equation given by the Reynolds, चेक कीजिए पीछे, ये रेनॉल्ड ने दिया था और इसलिए इसको हमने बोला था रेनॉल्ड्स टेस्ट। कहानी तो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि रेनॉल्ड ने जो इक्वेशन दिया था वहां पे जो टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द शियर स्ट्रेस था, दिस इज इक्वल टू टाउ u डैश v डैश, बट प्रॉब्लम अराइजेस हियर, कहां पे प्रॉब्लम अराइज हुई, क्योंकि ये आपका फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट था इन x डायरेक्शन एंड दिस इज द फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। प्रॉब्लम इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए बोसनिक ने, एक साइंटिस्ट आए बोसनिक, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि टाउ इज इक्वल टू, टाउ एल तो सेम रहेगा बट टाउ टी की जगह लिखा उन्होंने ईटा इनटू डी यू आर अपॉन डी वाई। बट ईटा को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा, हमें क्या मेजर करना पड़ा, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, दैट इज यू डैश एंड बी डैश। तो ये चीज तो मेजर करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट
टू मेजर दैट। तो प्रॉब्लम तो सेम का सेम रहा, जो उसका स्टेटमेंट आपका रेनॉल्ड सर ने दिया वही उसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट जो था वो आपका बोसिनेक था। दोनों के केसेस में क्या था कि जो आपका फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड बाई डायरेक्शन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। So to rectify this thing, then Prandtl comes into the picture in 1925। उसने कहा कि जो आपका ये जो टर्बुलेंट कंपोनेंट है that can be calculated by the measurable quantity। इसको हम measurable quantity की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो measurable quantity क्या थी? that is L, means Prandtl length। तो L is the measurable quantity। तो जैसे मैंने Prandtl लेंथ के बारे में आपको बताया कि Prandtl लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लूइड पार्टिकल्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन और इन द बाई डायरेक्शन, बट नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये जो दो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे लेयर में, सपोज इफ दिस इज लेयर नंबर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2, this is your fluid particle here, this is having the velocity UR, time average velocity, and when it jumps to the other layer, it velocity becomes UR plus U dash। So the distance between these two fluid particles in the normal direction, that distance is called the normal distance। So then he expressed the turbulent flow, he expressed the turbulent shear stress in case of measurable quantity and that is L। तो जैसे आपको बताया कि वो कैसा लिखा था उसने, तो उसी को मैं जहां पे लिखूंगा, तो ये U डैश और B डैश इसके बराबर है। He has assumed that velocity fluctuation in x direction U dash is related to the mixing length L। mixing length क्या है? L, as U dash को हम L इंटू डी यू बार अपॉन डी वाई लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो B है, velocity fluctuation in y direction, we can write in terms of this pair length। And if you will substitute the values here, U dash का values भी इसमें substitute कर दीजिए। U dash का value, this ये जो equation थी आपकी नॉट, इसमें कैलकुलेट करो, substitute करो, B dash भी substitute करो। So then you get this equation, tau is equal to mu du bar upon dy plus tau into U dash V dash है ना, L into L, this is L square du bar upon dy। You understand? So this is the total shear stress। इस तरीके से उसने टोटल shear stress को कैलकुलेट किया था मेजरेबल क्वांटिटी में। ये आपका लैमिनार कंपोनेंट ऑफ द फ्लो टाउ एल है एंड दिस इज द टाउ टी कंपोनेंट। क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हमें कहां पे प्रॉब्लम आ रही थी? जो आपका टर्बुलेंट कंपोनेंट आपका टर्बुलेंट कंपोनेंट था जो फ्लो का, वहां पे हमें shear स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए पहले रेनॉल्ड ने अपना स्टेटमेंट दिया, हाइपोथेसिस दिया, उसमें जो आपका जो टर्बुलेंट कंपोनेंट था तो वहां पे जो shear stress थी, that is in terms of this U dash B dash, tau into U dash B dash, these are the fluctuating component in x direction and y direction। और बोसनिक मैंने भी इससे मिलता जुलता दिया, वहां पर भी हमें ईटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए we have to find the value, we have to calculate the value of U dash and B dash, but this is difficult one। Then Prandtl comes into the picture and he has given this। तो आप देखिए ये L जो है ये measurable quantity है, that you can measure। This is the distance between the two fluid particles in the y direction or the normal direction। mu की वैल्यू भी आपको पता है, रो की वैल्यू भी पता है, du upon dy, that you can calculate। So you can calculate the total shear stress। You understand? अब उसमें एक चीज और देखिए, यहां पे नोट में आ जाएगी आपकी,
सो यहां पे देख लीजिए आप, जहां पे वन फ्लूइड पार्टिकल्स है, जहां पे टू सेकंड फ्लूइड पार्टिकल्स है, अगर हम मोमेंटम का डेफिनेशन को स्टडी करते हैं, मोमेंटम, सो मोमेंटम जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, राइट? और मोमेंटम आपका कब चेंज होगा? सो यू कैन से दैट द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, momentum of the fluid particles changes only when there is a collision between the two fluid particles. collision होगा तभी तो मोमेंटम चेंज होगा। सपोज एक चीज जहां से आ रही है, ये जहां से आ रही है, तो दोनों का मोमेंटम से टकराएंगे तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। सो मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स चेंजेस ओनली व्हेन देयर इज ए collision. But if you will, in case of the turbulent flow, in case of the turbulent flow, you have seen that there are fluid particles, or you can say there is a very small length between these two fluid particles in turbulent flow, where these particles don't collide, ये आपस में collide नहीं करते, there is no collision. So you can say there is no change of the momentum, right? इस केस में क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, ये बाई डायरेक्शन में है, ये जो आपकी पेरेंटल लेंथ है, इस लेंथ में आप देखिए, दिस पार्टिकल इज हियर एंड दिस पार्टिकल हियर, एंड बिटवीन दिस लेंथ, दिस इज एल लेंथ, इस लेंथ के बीच में आप देखेंगे कि ये जो दो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, देयर इज नो कोलिजन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। इस फ्लूइड पार्टिकल का इस फ्लूइड पार्टिकल से कोलिजन नहीं है इस लेंथ के बीच में। सो इट मीन्स दैट देयर इज नो कोलिजन। तो पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ को हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ। सो इसका लिख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, लिख लीजिए इसको, momentum of the fluid particles changes only when there is collision between the फ्लूइड पार्टिकल्स। जब फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा तभी तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। व्हाट, इसको आगे लिखिए, व्हाट इन टर्बुलेंट फ्लो, but in turbulent flow there is a distance between the, there is a distance between the fluid particles in y direction where the collision does not take place, or there is no collision, right? There is no collision, right? So that distance between the two fluid particle, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको ऐसे कर लेते हैं, that distance और that normal distance कह सकते हैं, that distance between the fluid particles
that distance between the fluid particles, distance means in by direction, that distance between the fluid particle is known as Prandtl length or mixing length. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज Prandtl mixing length. This is known as Prandtl mixing length. You understand? तो जहां तक हमारा, जब हमने Prandtl contributions लिया, now we are satisfied that we have calculated the shear stress in case of the laminar component, and that is also in the measurable form, measurable quantity. तो अब हमारा जो टोटल shear stress है, अब जो हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनी Prandtl ने जो दिया था, तो हमारा टोटल shear stress टाउ इज इक्वल टू म्यू du bar upon dy. This is the shear stress of the laminar component and this shear stress of the turbulent component. तो ये shear stress वाला हमारा फेज जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया. Now we are satisfied because we don't have to calculate the shear stress by calculating the u dash and v dash, means fluctuations in x direction and fluctuations in y directions of the fluid particles, which are really very difficult to do such type of that. तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए Prandtl ने हमें जो मिक्सिंग लेंथ थ्योरी का हाइपोथेसिस दिया, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव कैलकुलेट द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ shear stress and that is in the measurable form. तो ये मेजरेबल क्वांटिटी के केस में हमें दिया था, तो इससे हम इसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. यू अंडरस्टैंड? अब इसमें एक चीज और लिख लीजिए आप नोट में, L इज इक्वल टू, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लिया. अच्छा, L जो आपका था, L क्या था? Prandtl mixing length. This is equal to 0.4 into y. ये इसकी वैल्यू निकाली थी. सपोज हमारे पास y is the distance from the axis. ये आपका पाइप है, राइट? ये आपका पाइप फ्लो है. सो टर्बुलेंट फ्लो इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, राइट? तो टर्बुलेंट फ्लो जो है ये इस पाइप से, ये आपका एक्सिस है पाइप का सेंटर में. ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम वॉल से, ये इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वाई डिस्टेंस, राइट? वॉल से जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या होगा? वाई होगा. वॉल से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमारा डिस्टेंस क्या होगा? वाई होगा. तो L इज इक्वल टू 0.4 इंटू वाई. अगर मैं कहता हूं shear stress on the ball, अगर shear stress on the ball हमें फाइंड आउट करना है, on the ball of shear stress on the ball of the pipe, उस वक्त हमारा बाई क्या होगा? 0 होगा. बॉल से डिस्टेंस शुरू होगा, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये बाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो बॉल ऑफ द पाइप, बॉल ऑफ द पाइप कहां पे? जहां पे
जो पाइप का बाल है, जहां पे जो आपका शियर स्ट्रेस है, जहां पे बाल ऑफ द पाइप, तो बाई की वैल्यू क्या है? बाई आपका 0 है, डिस्टेंस इज 0 फ्रॉम द बाल ऑफ द पाइप, यू अंडरस्टैंड? तो देयरफॉर पेंडल लेंथ इन दिस केस एल क्या आएगा? एल इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0, दिस इज 0। और अगर मैं टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट, तो ये आपका L इक्वल टू 0 आएगा, यू अंडरस्टैंड? तो मिक्सिंग लेंथ ऑन द बॉल इज 0, और जैसे जैसे हमारा बॉल से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मिक्सिंग लेंथ की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जाएगी, राइट? तो शियर स्ट्रेस ऑन द बॉल ऑफ द पाइप, तो शियर स्ट्रेस ऑन द बॉल ऑफ द पाइप भी क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो कंपोनेंट अगर करें हम, टर्बुलेंट कंपोनेंट का शियर स्ट्रेस, टर्बुलेंट कंपोनेंट का शियर स्ट्रेस, तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू टो टी इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज एल स्क्वायर इंटू डी यू पॉइंट डी वाई होल स्क्वायर। तो एल आपका 0 है, तो जो टर्बुलेंट कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, और जो मिक्सिंग लेंथ की वैल्यू होगी अगर बॉल के ऊपर एट द on the ball, the value of the mixing length, this is y equal to 0, तो L भी क्या आपका होगा? 0, you understand? तो ये आपका जहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको कि इसमें टोटल शियर स्ट्रेस जो टर्बुलेंट फ्लो में है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सिस्टम है कि जहां पे जो आपका टोटल शियर स्ट्रेस होगा ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक कंपोनेंट होगा लैमिनार कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट होगा टर्बुलेंट कंपोनेंट। जो लैमिनार कंपोनेंट है उसका शियर स्ट्रेस यू नो इन द लैमिनार फ्लो भी अपने कैलकुलेट किया, दिस इज म्यू इनटू डी यू पॉइंट डी वाई, दिस इज सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो आपका कंपोनेंट आपका कौन सा होगा? टर्बुलेंट कंपोनेंट होगा, दिस इज टाउ टी, और यू कैन से टाउ टी जो टर्बुलेंट कंपोनेंट होगा, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर इनटू डी यू upon dy का होल स्क्वायर, दिस इज द टर्बुलेंट कंपोनेंट, राइट? सो टोटल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ एल प्लस टाउ टी, यू अंडरस्टैंड दिस? तो जहां तक तो शियर स्ट्रेस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए शियर स्ट्रेस नियर द बॉल रीजन हम निकालते हैं। इधर तो मैंने सीधा लिख दिया था शियर स्ट्रेस ऑन द बॉल, ये आप इसको अलग हेडिंग में करेंगे, ये सिर्फ आप बाई अगर आपका 0 है तो एल को 0 ले लिया। तो शियर स्ट्रेस ऑन द बॉल रीजन, हेडिंग डालिए नया, शियर स्ट्रेस ऑन द शियर स्ट्रेस ऑन द बॉल, हमें बॉल के ऊपर इसका शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। शियर स्ट्रेस ऑन द, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया नियर द बॉल, बॉल नियर द बॉल, बाई क्या होगा आपका? बॉल के पास में बाई approaches to 0 or is equal to 0, right? Near the ball, y approaches to 0. So as we know L is equal to 0.4 by, therefore L also approaches to 0. y को 0 है तो पुट करें जहां पे, तो L भी क्या होगा? 0, you understand? L क्या होगा आपका? 0। Now you know that the total shear stress right. So if L approaches to 0, अब देखिए जो जो आपका टाउ टी कंपोनेंट है, टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लो,
turbulent component of the flow, this is equal to tau t. This is equal to tau into L square du upon dy का होल स्क्वायर, राइट? यही है जो टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लो, दिस इज इक्वल टू टाउ टी, टाउ इनटू एल स्क्वायर डी यू अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर. व्हाट? एल इज इक्वल टू जीरो. नियर इफ एल जीरो है तो जे आपका टाउ टी क्या होगा? दिस इज इक्वल टू जीरो. तो टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लो, दिस इज इक्वल टू जीरो. सो देयरफॉर तो टोटल शियर स्ट्रेस तो आपको पता है, टोटल शियर स्ट्रेस क्या होगा इसमें? टाउ एल प्लस टाउ टी, राइट? तो टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस नियर द बॉल, दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस वी हैव कैलकुलेट. तो देयरफॉर जो टोटल शियर स्ट्रेस होगी नियर द बॉल, टाउ डब्ल्यू आप कर सकते हैं, टाउ डब्ल्यू, दिस इज द टोटल शियर स्ट्रेस नियर द बॉल, दिस इज इक्वल टू टाउ एल and this is equal to mu du upon dy. You understand? Tau L mu du upon dy. You understand? तो ये आपका आ गया near the ball region. अब देखिए, if you will see that near the ball region, we will get the total shear stress or the shear stress on the ball, this is equal to mu du upon dy. क्योंकि जो टर्बुलेंट कंपोनेंट है उसका shear stress क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज नियर द बॉल द मिक्सिंग लेंथ जो है L इज इक्वल टू जीरो. तो जहां से हमें एक कंसेप्ट मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो नियर द बॉल रीजन होगा, जैसे ये आपका बॉल है, जो इसके साथ जो नियर द बॉल रीजन है, ये नियर द बॉल, मैं कहता हूं दिस इज द नियर द बॉल रीजन, जहां पे हम अज्यूम करें कि इसका बाई की वैल्यू जो है, so near the ball region you have seen that turbulent component of the flow that is equal to zero. तो इसका मतलब है कि जो आपका near the ball region है, what is the component? that is the laminar component of the flow. कौन सा component होगा? laminar component of the flow. तो जहां से हमें एक कंसेप्ट मिला, एक if y approaches to zero or near the ball region, the region is known as laminar sublayer region, right? अगर आपका y approaches to zero है तो आप कह सकते हैं नियर द, ये जो नियर द बॉल रीजन है, ये कौन सा हो गया? लैमिनार सब layer region. This is called the laminar sublayer region. Here the flow is laminar. तभी तो आपने देखा था जो पीछे वेलोसिटी डायग्राम मैंने इसका ड्रा किया था. अगर मैं इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रा करता हूं तो नियर द बॉल रीजन आपने देखा था कि पहले हमारा जो शियर स्ट्रेस थी, ये हमारी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और उसके बाद ये आपका पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस तरीके से. तो वो लीनियरली क्यों हुआ था? बिकॉज द नियर द बॉल रीजन देयर इज ए लैमिनार सबलेयर कंपोनेंट रीजन. तो लैमिनार सबलेयर रीजन में जो आपकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कैसे होगी? लीनियरली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जो अगला पोर्शन होगा वहां पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट इज द लॉगरिथमिकली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी. यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन से डेफिनेशन लिखो, नियर द बॉल रीजन only laminar component of shear stress exists. तो इसमें लिख लेते हैं, ये तो आ गया आपका टाउ यू, द shear stress near the ball, tau w, this is equal to this one. तो अगर डेफिनेशन हम लिखें, तो you can say near the ball region के हमारे पास क्या मिलेगा? लैमिनार
laminar shear stress है ना कंपोनेंट एग्जिस्ट, क्या होगा, जो लैमिनार शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, तो इट, क्योंकि टर्बुलेंट कंपोनेंट ऑफ द शेयर स्ट्रेस वो क्या है, जीरो है, ये तो अभी हमने निकाला। सो यू कैन से, सो दिस रीजन is known as, this region means the region near the ball of the pipe, उस रीजन को हम क्या करेंगे, दिस रीजन इज नोन एज लैमिनार सब लेयर रीजन। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, लैमिनार सब लेयर रीजन। अंडरस्टैंड? तो अब आपको समझ आ गया कि जब हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ड्रा किया था तो पहले मैंने क्या किया था, हमने थोड़ा सा इसको लीनियरली ये आपका चेंज हुआ था और उसके बाद रिथमिकली। तो उस वक्त तो हमने आपको डिस्कस करके नहीं बताया था कि ये पहले लीनियरली क्यों इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद ये लॉगरिथमिकली चेंज होगा। द रीजन इज, एज आई टोल्ड यू, जब मैंने shear stress near the ball I have calculated, तो जैसे आपको पता है टोटल shear stress in the turbulent flow, this is made up of two component, that is the laminar component and second one is the turbulent component. अच्छा, so this is clear, laminar सब लेयर रीजन किसको बोलते हैं। अब इसमें आ जाइए, थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर रीजन, थिकनेस ऑफ सेमिनार सब लेयर रीजन। अब ये जो लैमिनार सब लेयर रीजन है, ये तो हमने आपको बता दिया, दैट इज नियर टू द बॉल, दैट रीजन इज कॉल्ड द लैमिनार सब लेयर रीजन। यू अंडरस्टैंड? अब थिकनेस जो लैमिनार सब लेयर रीजन की है, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा डैश, और ये किसके बराबर होगी, 11.6 this is eta and this is given by J. Nikodis से this is given by Nikodis से that thickness of the laminar sublayer region, this is equal to this much. सीधा empirical formula था, where this is the kinematic viscosity and is kinematic viscosity and B star, this is called the shear, is shear velocity, this is called the shear velocity. You understand? So this is the formula for showing the thickness of the laminar sublayer region, 11.6 into eta, and this is the V star, that is shear velocity. तो दिस इज द फार्मूला जिससे हम इसका जो लैमिनार सबलेयर थिकनेस है उससे हम शो कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आ जाइए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार सबलेयर रीजन। तो एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
जैसे तो पहले भी आपको बताया कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी इसमें वो क्या होगी, लीनियर होगी। तो इसको हम निकालते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार सब लेयर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार सब लेयर रीजन। तो जैसे हमें पता है, कैन वी से एट बाई इक्वल टू 0, राइट। जब बाई अप्रोचेस टू 0, टाउ इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू, राइट। टाउ जो है हमारा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू। टाउ डब्ल्यू मीन्स shear stress near the wall। जब आपका बाई इक्वल टू 0 है, अप्रोचेस टू 0 कर लीजिए आप, अप्रोचेस टू 0 है तो टाउ इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं टाउ डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी बाई, ये हमने भी निकाला यहाँ पीछे, डी यू आर अपॉन डी बाई, दिस इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू, राइट। और जो आपका टाउ डब्ल्यू है डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड बोथ साइड बाय टाउ। इस इक्वेशन को दोनों साइड्स आप टाउ से डिवाइड करो। Therefore, tau w upon रो से डिवाइड करो, दिस इज इक्वल टू राइट म्यू अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड तो जैसे आपको पता है एज बी नो, जो हमने पीछे किया था लैमिनार फ्लो में भी इसको मैंने प्रूव किया था, टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, अगर आपका अंडर रूट टाउ डब्ल्यू अपॉन रो किसके बराबर होता है, बी स्टार के बराबर। ये किसके बराबर है, बी स्टार के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, बी स्टार स्क्वायर is equal to mu upon rho, this is equal to kinetic viscosity into du bar upon dy, right, du bar upon dy, this you understand that। तो यहां से du की वैल्यू निकाल लें आप, therefore du bar this is equal to you understand this, du bar this is equal to this one so now इंटीग्रेटिंग, अब आप इसे इंटीग्रेट कर लो। सो इंटीग्रेटिंग ये आपका आएगा u बार दिस इज इक्वल टू बी, ये तो आपका कांस्टेंट है जैसे ही रहेगा,
into by plus C. You understand? Into by plus C. So if you will see ये आपका आएगा टाइम एवरेज वेलोसिटी जो अपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लैमिनार फ्लो में. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन you see here that this is the equation of the straight line, right? So this is the equation of the straight line. So you can say the distribution of, नोट कर लीजिए, distribution of velocity in laminar sub-layer region is linear, right? तो जो ये वेलोसिटी है जो क्या होगी, ये इस तरीके से लीनियर होगी, राइट? तो सब लेयर रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन द लेफ्ट सबमिट जहां से हो गया, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस, तो दैट इज लीनियर. यू अंडरस्टैंड? अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जी आप नोट कर लीजिए. आप जहां पे क्लियर है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालना था, तो इसमें हमने ये कंडीशन लिया बाई अप्रोचेस टू जीरो. तो आपका जो शेयर टोटल शेयर स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू द वॉल शेयर स्ट्रेस टाउ डब्ल्यू, एंड टाउ डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू म्यू डी यू बार अपॉन डी वाई. अगर हम दोनों साइड्स को इसको रो के साथ डिवाइड करें तो दिस इज आपको पता है ये आपकी जो शेयर वेलोसिटी है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड इन द लैमिनार फ्लो आल्सो कि शेयर वेलोसिटी किस तरीके से इसमें आती है ये. तो इसकी जगह आप क्या करें, ये क्या है, ये है दिस इज टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, सो दिस इज बी स्टार स्क्वायर इनटू म्यू अपॉन रो, दिस इज काइनेटिक विस्कोसिटी, दिस दैट इज ईटा जो मैंने लिखा है जहां पे नीटा ईटा जो भी, एंड दिस इज इक्वल टू डी यू बार अपॉन डी वाई. तो डी यू की वैल्यू हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो डी यू की वैल्यू इसमें निकालें आप, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से, एंड देन वी इंटीग्रेट एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कम टू नो दैट दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द लैमिनार सब लेयर रीजन दिस इज लीनियर. अब हम इसकी कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालेंगे. तो एट ये कंडीशन ले लीजिए, कंडीशन क्या लेंगे हम, बाउंड्री कंडीशन ये लिए एट बाई approaches to zero, so therefore C u bar, this is 0 r approaches to 0 at by approaches to 0, so u bar this is equal, this is approaches कर लो, this is approaches to 0, right? इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू. सपोज ये मैं अब कहता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या आएगा आपका, जहां पे सबसे यू बार क्या है, 0 है, एंड जे भी बाई क्या है, एट बाई इज इक्वल टू 0, जे भी आपका 0 आ जाएगा, 0 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0. तो आपकी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आएगी यू बार दिस इज इक्वल टू v right into by.
तो ये फार्मूला याद रखिए, दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द टाइम एवरेज वेलोसिटी इन सब लेयर रीजन, राइट, टाइम एवरेज वेलोसिटी इन सब लेयर रीजन, राइट। तो आज तक ये लेक्चर यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट जो इसका होगा आपका आएगा शेयर स्ट्रेस इन द टर्बुलेंट पार्ट के ऊपर। जो आपकी शेयर स्ट्रेस है वो क्या होगी, शेयर स्ट्रेस इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन। ये तो आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर रीजन था, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन के ऊपर, और फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द बाउंड्री लेयर रीजन के ऊपर। इस तरीके से ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इन द बाउंड्री लेयर रीजन एंड आल्सो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर रीजन। सो आज तक जो लेक्चर है, आई थिंक दिस इज इनफ अप टू दिस, जहां तक काफी है। तो आगे वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसी लेक्चर को थोड़ा सा मैंने ये जो पार्ट 2 छोड़ा था, तो जहां पर भी मैं कैलकुलेट करता हूं तो लेक्चर आपका लंबा हो जाता है यहाँ पे, तो उसको हम सेपरेट लेक्चर को सेपरेट करेंगे, सो दैट कि वो सारी चीजें जो है एट द एंड ऑफ पार्ट ना आपको एट द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द लेक्चर ना मिले। जो नया लेक्चर होगा उसको स्टार्टिंग में मिले, क्योंकि स्टार्टिंग के टॉपिक हैं टर्बुलेंट फ्लो का, टर्बुलेंट पार्ट का हमें फ्लो का हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, और इसी तरीके से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो, सो दैट शुड बी इन द नेक्स्ट पार्ट यू कैन से ऑफ दिस ऑनगोइंग लेक्चर। ये जो अगला लेक्चर है इसका नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम करेंगे। तो आज तक इतना काफी है, सो थैंक यू वेरी मच।